ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी तक आप देख रहे थे कि संसद में राज्यसभा की कार्रवाई जो कि अब मंगलवार को दोबारा शुरू होगी, स्थगित हो गई और बजट वहां पर भी रखा गया। लेकिन जो बजट पेश किया गया उसकी प्रमुख बातें क्या हैं, एक बार आपको दिखा दें, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अलग अलग सेक्टर्स पर कि किस तरीके से वहां पर एलोकेशन बढ़ा है, क्या नई स्कीम लॉन्च की गई है, उसका मोटिव क्या है और उसका इम्पैक्ट कहां पर किस तरीके से नजर आएगा और ओवरऑल इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट किस तरीके से हमारे वाले वर्षों या महीनों में देखेंगे। Absolutely. There have been several significant developments as far as the budget is concerned. Allocation has been made for the key sectors that we thought would be given their due course and their due importance, and that's precisely what we've seen. Power sector getting a major chunk, was healthcare as well as agriculture. Infrastructure saw a major push, MSMEs and even roads, transport. So these were some of the sectors that saw a major chunk of the budget allocation. An NIP project pipeline has been expanded to 7,400 projects. These are some of the highlights that you can see on the screens right now. Mitra scheme to create 7 textile parks over 3 years. Fishing hubs, 5 of them have been envisioned as well across the country so as to give fisheries a boost. 35,000 crore rupees has been set aside for COVID-19 vaccination, as well as healthcare infrastructure too has been given a major push. The National Rail Plan to develop adequate infrastructure, rail infrastructure has been put in place as well. About 8,500 kilometers of highways will be awarded by March 2022, and the government is set to introduce a development financial institution, that is a bank for roads as well, which will have to see funding in the or which can give out funds to the tune of 5 lakh crore rupees within a span of 3 years. Joining us on the program right now is Mr. Jayandas Gupta, former ambassador of India at the WTO, and with us still on the panel right now is Mr. A.K. Bhattacharya, editorial director of the Business Standard. All right, so Mr. Bhattacharya, let's take the discussion forward. We're talking about several key aspects really of the budget. We haven't spoken about healthcare. That was a big takeaway really. 35,000 crore rupees has been kept aside for COVID-19 vaccination. You know, in the lead up, all the discussions that we were having prior to the budget, we knew that health would be a major sector, a sector where we need to look out for, and a sector where a lot of allocation would take place. And true to that, it has happened in the budget as well. I think, you have to see the health expenditure in a larger context. In the current year, the expenditure is going to be around 95,000 crore. Now, if you see 95,000 crore of expenditure and you add 35,000 crore of vaccination, you still nowhere near 2.23 lakh crore that is being proposed to be spent next year. So, truly speaking, from 95,000 crore, it is going up to 2.23 lakh crore, and 35,000 crore is only, so the increase has come in a large number of items. It is not just because of the vaccine that the healthcare expenditure has gone up. It is going to be hopefully be used for creating infrastructure, and this is an area where you are also building the muscles of the Indian economy, because if you have healthy people, healthy workers, you are contributing to better quality of output. And from in this area, I would go beyond what you are saying on the health sector. Is something that is not yet actually been highlighted. Is the quality of the fiscal expenditure that the finance minister this time has proposed. I see a distinct improvement in the quality of and the transparency of the fiscal deficit numbers, in a sense that this year you are seeing that the entire fiscal, the subsidy element of the food subsidy element, which is quite a large item, that is being reflected truly entirely under the budget size. Earlier they used to be hidden under NSSF money, so therefore it would not get reflected in the government finances. This is after some years that you are seeing the food subsidy bill fully reflected in the government's fiscal deficit figures. That to my mind is actually taking... यहाँ पर रुकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट को लेकर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये सुन लेते हैं। 1000 अतिरिक्त मंडियों को
ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है। एमएसएमई सेक्टर जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है, इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना। और आज हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया, बल्कि अब इस बजट में पेपरलेस बजट ने भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी और सही तथ्य और सही आंकड़े देश के सामने आते हुए दिखाई देंगे। मैं एक कोरोना कालखंड में एक विकासोन्मुख और व्यवहारिक बजट के लिए, जिसमें समाज के प्रत्येक तबके का ध्यान रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह बजट नए भारत की नई अर्थनीति के अनुरूप आम जन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। बजट में 100 सैनिक स्कूलों को राज्य सरकारों के साथ या पीपी मॉडल के साथ बनाने की घोषणा अत्यंत स्वागत योग्य है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन करने, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की जो घोषणा हुई है, यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। वरिष्ठ नागरिकों की जो अपेक्षाएं थी, कोरोना कालखंड में भी सरकार ने उनका ध्यान रखा और अब 75 वर्ष से अधिक आयु के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके पेंशन की आय में टैक्स से छूट देने की घोषणा भी स्वागत योग्य है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालयों की अतिरिक्त घोषणा अत्यंत सराहनीय पहल है। और अगर मैं कहूं तो यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा से देश के गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर यह बजट खरा उतरेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए, और हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए साथ ही अतीश राजावत वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। जैन सर, अगर हेल्थ केयर सेक्टर को देखें, जिस तरीके की ज़रूरतें इस वक्त महसूस की जा रही थी और उम्मीद भी की जा रही थी, ओवरऑल अगर कहें कि कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का किया गया लोकेशन, इसके साथ साथ 64,180 करोड़ रुपए के जरिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात हो रही है, तो ओवरऑल अगर हम जो ज़रूरत थी भारत जैसे देश में, उसको कितना पूरा करता हुआ दिखता है बजट में हेल्थ सेक्टर को लिया गया एलोकेशन जो है?
कविंद जी, ऐसा है कि हेल्थ केयर के लिए आप जानते हैं लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए और तो इस 64,000 बजट में करोड़ खास रुपए तौर से की जो बात आपने की, उसमें expenditure- 17,000 केंद्र जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो राज्यों में हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और 11,000 ऐसे केंद्र जो शहरी क्षेत्र में हैं, उनमें जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती रही हैं उनको उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें विकास किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात है, स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ पोषण को भी देखना पड़ेगा। तो पोषण के मामले में एक जो स्टंटिंग और अंडर न्यूट्रिशन वाली बात है, उसका समाधान निकालने के लिए भी अलग से एक योजना बनाई गई है जिसको पोषण 2.0 का नाम दिया गया है। तीसरी चीज़ है कि स्वास्थ्य के साथ सैनिटेशन और जल आपूर्ति का बहुत गहरा संबंध है। तो जलापूर्ति के लिए जो शहरी क्षेत्र हैं उसके लिए अलग से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट प्रावधान किया गया है। स्वच्छता मिशन जो है वो स्वच्छता मिशन 2.0 में फिर प्रावधान किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर देखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य के लिए सरकार ने किन किन दिशाओं में प्रावधान किया है। यतीश, क्योंकि अगर हम हेल्थ को देखें और ख़ासतौर पर जो वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आई थी उसको भी आगे बढ़ाने के लिए शायद ये कदम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि करीब कहा जा रहा है कि 17,000 जो है रूरल और 11,000 अर्बन जो वेलनेस सेंटर हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको रिमॉडिफाइड किया जाएगा। कविंद जी, इसमें 3 पहलू हैं जिन पे नजर रखनी चाहिए। एक तो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पास करीब 65% हेल्थ केयर या हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज हैं और सरकार की एनएचपी पॉलिसी के तहत ये जद्दोजहद रही है कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को बढ़ा के 2.5% किया जाए जीडीपी का। तो पैंडेमिक के दौरान ये कमी और भी ज़्यादा महसूस की गई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल लेवल पे यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन पे, स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे और रूरल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीनों पे इसकी कमी महसूस की गई है। इसीलिए इस बार बजट में जो एलोकेशन 130-140% बढ़ाया गया है वो इसी मद्देनजर रखे किया गया है कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए, यानी कि बेहतर पानी, बेहतर सफाई कैसे की जाए और फिर क्यूर यानी कि पैलेटिव क्यूर और मेडिकल केयर, हॉस्पिटलाइजेशन यानी इन दोनों को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इसका इम्प्रूव किया जाए, जैसे कि ये दोनों सर्विसेज ओवरऑल पेशेंट्स के बेनिफिट में हो। एक बहुत बड़ा आपको पता है कि आयुष भारत के तहत इकोनॉमिक सर्वे में भी जिक्र है इसका कि आयुष भारत का क्या असर पड़ा है हेल्थ केयर सर्विसेज पे, और एक असर उसका जो पड़ना था वो था कि खर्च, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं हेल्थ केयर के वो बढ़ रहे हैं और उनको कैसे कम किया जाए। वो कम तभी होंगे तब कि या तो हाइजीन पे इन्वेस्टमेंट होगी या फिर सरकार डायरेक्टली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी पब्लिक सेक्टर के माध्यम से। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट है इसको मद्देनजर रखते हुए ये इन्वेस्टमेंट 94,000 करोड़ से बढ़ा के करीब 2,23,846 करोड़ किया गया है हेल्थ केयर सेक्टर में। कमेंट Absolutely. All right. Taking the discussion forward now, Mr. Dasgupta, let's also focus on another big area, which is infrastructure, and more specifically focus on roads and rail. If you look at, the highways, about 8,500 kilometers of highways will be awarded by March 2022 is what the finance minister said. And also, pole-bound West Bengal will see highway projects worth 25,000 crores. So, big push there as far as road infrastructure is concerned. The budget allocation, I think, has been raised to about 1,10,000 crores for roads alone all over the country. So that is a huge push. Now, this will not only improve connectivity and provide a fillip to businesses,
to economic activity, it will also very importantly generate a lot of employment, because road construction involves a lot of labor. So this is very, very welcome, and it is a step in the right direction. If you look at infrastructure overall, the allocation for last year was about 4.5 lakh crores, and this has been raised to about 5.54 lakh crores this year, in the forthcoming year. So overall, it would be more than 20% increase in the outlay for next year. So this is a huge increase. The second thing is that electrification of all broad gauge railway lines will be completed, if I'm not wrong, in a span of 2 years. So the National Rail Plan is also to be implemented by 2030. So these are aspirational goals, and these are going to be very useful for business, because an attached thing which has been mentioned is that the share of railway freight will be raised from 27% to 45%. So this itself will relieve a lot of load on the roadways system. It will also reduce pollution, and it will provide perhaps much quicker communication. Absolutely. And as far as railways is concerned, the allocation there too is about 1.1 lakh crore rupees. So that is massive for railways as well. Continuing with this road infrastructure theme, Mr. Bhattacharya, let's also talk about the bank for roads that has been envisaged by the finance minister in her budget. The government is set to introduce a development financial institution. What shape do you see it taking, and how will it help? Okay, I think we lost the line there with Mr. Bhattacharya. But, Yatish, if I can take that question to you, and if you could take us through that. So, as you know, Frank, that for the last almost 7 years, there has been a gap which has been felt both by the corporate sector and by the financial institution, that there is no institution in the country which would provide credit for long infrastructure projects, and credit growth per se has been quite low for the last 4 years. Private sector banks or public sector banks have not been able to increase it. So therefore, two things have been done in this budget. One is the creation of a bad bank, which is a lot of NPAs have been diverted to a new ARC/AMC, which will then monetize these NPAs and ensure that these NPAs are converted into either productive assets or hived off and sold under the NCLT. The second most important thing which has been done, and which has been a demand for a long time by the infrastructure sector, is the creation of a development financial institution. As you know that in the 90s, development financial institutions like the IFCI, IDBI and ICICI even were converted into banks. So therefore, in the last 18-20 years, there has been no institution which has actually played the role of creating or helping long gestation projects. So this time, the finance minister has clearly announced that she is going to bring out a bill to establish a DFI with an initial capital of 20,000 crore. And she's also set up a credit growth there of, I think, something like 5 lakh or crore over the period of 3 years. This will basically, this is basically important to drive the infrastructure growth, because most infrastructure growth in the private sector and even the public sector is being stuck because of lack of long-term capital. There is another small little thing that she has tweaked, which is quite important and noteworthy, which is the monetization of existing road assets and even distribution and freight assets. You see, what she has said that road projects which are already there with NHAI will be monetized as projects, and the same thing will be done for the consumer in the distribution field. As you know that most DISCOMs are severely impaired with bad loans on their books and
too many of them are in losses and they're not able to pay these loans. So she has said that they will work out on a strategy to introduce competition on the distribution side also. So the consumer and the sector benefits from additional investment. Frank. जी, और जैन सर, जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट की बात हुई है इस बजट में, और साथ साथ हमने जो बैंकों को सहूलियत दी थी और कंपनियों के जो एनपीओ को लेकर एक कवायद सरकार की ओर से रही है पिछले करीब 2 वर्षों से जो हुआ है, उसका इम्पैक्ट और इस बजट में जो अनाउंसमेंट है, अगर हम उसका इकनॉमी पर इम्पैक्ट देखें तो किस तरीके से आपको नज़र आता हुआ दिखेगा अगले 1 या 2 क्वार्टर के बाद? और जो रिस्क फैक्टर की चर्चा की गई थी आर्थिक सर्वेक्षण में, वो इस अनाउंसमेंट के बाद में कितना कवर होता है? इस संदर्भ में 2 बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि रिजर्व बैंक के भी आकलन से लगभग 17.5% नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बढ़ जाने की संभावना है। ये मॉरेटोरियम जब हटेगा उसके बाद अनुमान ऐसा रिजर्व बैंक ने किया है। तो जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हैं तो उनके लिए फाइनेंशियल प्रोविजनिंग करना पड़ता है हर बैंक को, और अपने मुनाफे में से उसमें अलग हटा के रखना पड़ता है। तो इससे उनको जो ऋण देने की जो उनकी क्षमता है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि इतना पैसा उनको अलग कर देना पड़ता है। तो बैड बैंक्स की जो बात हुई है, बैड लोन्स की बात हुई है, उसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे जो बैलेंस शीट है बैंक्स के वो मुक्त हो जाएंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से, और उसके बाद उन्हें सहूलियत होगी कि वो पूरी अपनी सीमा तक ऋण दे सकें, और जिससे कि व्यवसाय को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, हर तरह के प्रोजेक्ट्स को सहूलियत होगी। तो ये एक पहलू है इसका। दूसरी बात यह है कि जो ये बैड या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के संदर्भ में है, इसमें एक बात चर्चा में आई है कि अगर इसमें भी सरकारी नियम कानून से इस पर नियंत्रण रखा जाए और इसकी कार्रवाई को नियंत्रित किया जाएगा तो उसमें कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इस संदर्भ में बजट भाषण में हालांकि कोई बात नहीं उठी है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि उसमें चूँकि ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए एक बैड एसेट्स बैंक बनेगा, उसमें इनको अल्टीमेटली बेचना पड़ेगा। उसमें चाहे तो विखंडित करके जो भी खरीदार जिसके लिए मिले उनको बेचना पड़ेगा, जिससे कि कुछ राशि वापस आ जाए सरकारी खाते में। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें अगर सारे चीज़ अगर सरकारी नियम कानून L1 इत्यादि और जो भी प्रक्रिया है उसको पालन करके करेंगे तो एक तो बहुत समय लगेगा, दूसरी बात है उसमें निर्णय लेने में भी देर होगी। तो एसेट मैनेजमेंट बैंक जो होगा उसको उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होगा। ये आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में एक मार्गदर्शिका या गाइडलाइंस निकलेंगे और सरकार अपना रोल आउट करेगी कि क्या उसकी योजना है एसेट मैनेजमेंट बैंक को साक्षात रूप देने में। ओके यतीश, एक और चीज़ जो है इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI है उसको लेकर जो लिमिट कैप थे उसको 49 से बढ़ाकर 74 पीस करने की बात अनाउंसमेंट हुआ है। इसे कैसे देखते हैं और इसका अगर इम्पैक्ट देखें सेक्टर में या इकोनॉमी में वो क्या रहा है और इससे क्या फ़र्क उस पर पड़ेगा? करण जी, मैं इससे पहले इंश्योरेंस पे आऊँ, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को और व्यूअर्स को बताना चाहता था कि जो मनरेगा का जो आप दिखा रहे हैं कि जिसमें कमी हुई है, उसको सिर्फ मनरेगा के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान योजना है इसके साथ जोड़ के देखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पिछले साल 75,000 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक के दौरान इसकी जरूरत बहुत ज्यादा समझी गई तो इसमें एलोकेशन ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द ईयर बढ़ा दिया गया, और जो आंकड़े मुझे बताए गए हैं वो करीब 1,16,000 या 1,10,000 करोड़ का इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में पैसा दे दिया गया। इसीलिए जो मनरेगा का जो बजट है वो थोड़ा सा कम हो गया है,
और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो डायरेक्टली किसान के हाथ में पैसा जा रहा है उसका बजट बढ़ गया है। तो क्योंकि ये सरकार की सबसे बड़ी स्कीम है और आप लगातार इसके ग्राफिक्स अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, तो इसके साथ आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का भी ग्राफिक दिखाना चाहिए। वो बताएगा कि ये क्यों गया है, ओके। कहाँ गया है रूरल में इन्वेस्टमेंट। अब रही बात आपके प्रश्न की, जो इंश्योरेंस की बात थी कविंद जी, देखिए इंश्योरेंस में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एफडीआई बढ़ाए जाए। उसी संदर्भ में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि वो अमेंडमेंट लाएंगी बिल में, जिससे कि ये 49% से बढ़ा के 74% की जाए। ये अपने आप में एक स्टेप देखना चाहिए हमें पीएसयू या डाइवेस्टमेंट का, क्योंकि इस साल वो एलआईसी का आईपीओ भी लेके आएंगे और इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने पहले इसका इंडिकेशन किया है, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी कमिटमेंट दी है अपनी बजट स्पीच में। तो क्योंकि एलआईसी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है देश में और पब्लिक सेक्टर में ऑफ कोर्स सबसे बड़ी कंपनियों में भी मानी जाती है, नवरत्न है, और उसका जब ये आईपीओ आएगा तो पूरे सेक्टर पे उसका असर पड़ेगा। और इसी के साथ उन्होंने ये एफडीआई की लिमिट को भी 49% से बढ़ा के 74% किया है। And since we are here, then, Mr. Dasgupta, let's talk about the disinvestment target as well of the government and how, that is likely to go forward, because we've got the plans to complete the disinvestments of BPCL, Concor and SCI as well. And like Yatish was mentioning, the LIC IPO in FY22. The policy of the government has been very clearly set out, and that is that all PSUs which are there in the strategic sectors, they will be consolidated, and only in 4 strategic sectors they will be allowed to continue in the medium to long term. In all the other sectors, there would be divestment of the assets. So that is a very clear-cut indicator that Hold that thought, Mr. Dasgupta. I'm just going to come back to you in just a bit. But first, let's take a reaction from the Niti Aayog. डिजिटाइजेशन पर है, इजीनेस पर है, सिंप्लिसिटी पर है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत तो सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी Well, Amitabh Kant of Niti Aayog there, we couldn't really catch his entire interaction. We'll try and play that out in the due course of time, reacting to the budget. But Mr. Dasgupta, go ahead. You're making a point about disinvestment. In the case of disinvestment, of course, as you mentioned, BPCL, Container Corporation of India, Shipping Corporation of India, these were the ones which were supposed to yield good revenue for the government. Air India, of course, was also listed, but that may not have yielded a lot of revenue, and none of these have been really divested so far. But the share market is doing well, asset values have increased, and there is a clamor for FPIs to come in and invest in viable assets. So this is the opportune time for us to divest. So not only is the divestment going to take place in the PSUs, I was making the point that apart from the 4 strategic sectors, the PSUs in all other sectors would be divested in the near to medium term. Now, the other point which has been made in the budget speech by the finance minister is that government departments and PSUs are also holding on to a lot of land and other assets which can be easily monetized and additional resources raised for the government through that. So that is, of course, not strictly speaking divestment in the shareholding or in the asset of the, I'm sorry, not the shareholding of the company, but it would lead to monetization of assets and it would lead to additional revenue for the government. ओके सर। और हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश कुमार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं AJNIFM से। आपका भी स्वागत है सर।
सर, जो हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की, और जो इस बार का लक्ष्य टारगेट है 2.1 लाख करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, जबकि 2019 में जिसकी चर्चा हो रही थी कि 1,05,000 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा अचीव नहीं हो पाया था। जिस तरीके के हर्डल्स नज़र आते हैं और जो एटमॉस्फेयर इस वक्त नज़र आ रहा है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के लिहाज से, उस ऐसे में ये जो टारगेट है ये कितना मुश्किल या कितना आसान दिखता है? देखिए, वर्तमान में जो परिस्थिति है ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। सरकार कई मुद्दों पे प्रयासरत है अपने सीमित संसाधनों के द्वारा कि कैसे विकास को बढ़ाया जाए और जो अर्थव्यवस्था रिसेशन की ओर है उसे वापस ट्रैक पे ला करके एक टारगेटेड ग्रोथ को अचीव किया जा सके। चुनौती तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये शुरुआत के दौर में जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, ये सारे कदम एक पॉजिटिव इंडिकेशन को दर्शाता है और मुझे आशा है कि विकास होगा और लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। नीतीश, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं और जो इस वक्त एटमॉस्फेयर माहौल नज़र आता है, उसके लिहाज से जो लक्ष्य हम देखते हैं इस बार के बजट में, उसे हासिल करने के लिए क्या महत्वपूर्ण स्टेप या रास्ता आपको लगता है? चीजें की गई हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बजट आने से 2 दिन पहले सरकार ने पब्लिक सेक्टर पॉलिसी इशू की थी, एक PSC पॉलिसी नाम से, जिसमें ये बताया गया था किस सेक्टर्स को सरकार स्ट्रैटेजिक समझती है, किस सेक्टर्स में वो जी यतीश, मैं रोकूंगा आपको। इस वक्त जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी बजट को लेकर, आइए सुन लेते हैं। एस्पेक्ट और जो वेलबींग है यानी होलिस्टिक हेल्थ, इसको बहुत प्रमुखता से, बहुत गहराई और अध्ययन के बाद इसकी चिंता की गई है। अगले 6 साल के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान जो हमें नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, जिसके माध्यम से हम देश की सारी स्वास्थ्य सेवाओं को चलाते हैं प्रमुख रूप से, उसके अलावा ये जो है प्रावधान हमारे लिए किया गया है। आज जो कोविड की वैक्सीन 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देना देश के हेल्थ वर्कर्स को शुरू किया गया, अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी शुरू हुआ और आने वाले समय में दूसरी श्रेणी के लोगों को मिलेगा। उसके लिए भी वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और ये भी कहा है अपने भाषण में कि और आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी जो है गहराई से चिंता उसकी करेंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, विशेष रूप से जो कोविड के अंदर भी जो हम लोगों को 1 वर्ष में अब अनुभव हुआ, उन सब अनुभवों का भी लाभ उठाते हुए एक व्यापक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर और ज्यादा विस्तार देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 17,000 रूरल एरियाज में और 11,000 अर्बन एरियाज में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए प्रावधान किया गया है। सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले वर्षों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की स्थापना हो, इसके लिए योजना बनाकर प्रावधान किया गया है। 3,382 ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ की यूनिट्स 11 स्टेट्स में उनकी स्थापना करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह से 602 डिस्ट्रिक्ट्स में देश के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाने की योजना और साथ में 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार के ब्लॉक बनाने की योजना के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो हमारा देश का प्रतिष्ठित सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल,
जिसने कोविड के कंट्रोल में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सफलता के साथ, ये प्रावधान किया गया है कि उसी प्रकार के 5 रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ब्रांचेस सारे देश के अंदर स्थापित की जाएंगी। 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट्स देश में स्थापित की जाएंगी और इसके साथ साथ 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा और 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट्स और 7 लैंड क्रॉसिंग्स के ऊपर जो ये सारी हमारी टेस्टिंग की, पब्लिक हेल्थ की जो एक्टिविटीज, जिनको प्रमुखता से हमने सबने देखा कि कोविड के दौरान उनकी कितनी आवश्यकता थी, इतने स्थानों पर इनको बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स, इनको आने वाले समय में विकसित किया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया है। एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, ये हमारा जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म हम लोग विकसित करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस के साथ मिलकर। और इससे भी ज़्यादा हमारे लिए खुशी की, गर्व की बात है कि 9 BSL-3 यानी बायो सेफ्टी लेवल 3 जो लेबोरेटरीज हैं वो भी देश में विकसित की जाएंगी। ये बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही एडवांस्ड लेबोरेटरीज होती हैं। हमने सुना होगा कि जब कोविड की जंग शुरू हुई तो देश में एक ही जगह पर जांच होती थी, NIV पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। अब सरकार ने तय किया कि ऐसी 4 और रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये देश के अंदर स्थापित किए जाएंगे। अभी तक जो पिछले समय में भारत ने ही विकसित किया इंडिजिनस न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको अभी केवल 5 स्टेट्स के अंदर बच्चों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उपलब्ध कराया जाता था। अब ये वैक्सीन भी देश में सभी स्टेट्स के अंदर सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको उपलब्ध कराया जाएगा। और एक रफ अनुमान है कि इसके कारण 50,000 से ज्यादा जो बच्चों की, छोटे बच्चों की जो मौतें हैं, उनसे उनको बचाने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। हम सब जानते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हमेशा ये कहा है कि हेल्थ में पोषण का, न्यूट्रिशन का, सैनिटेशन का, स्वच्छ जल का, ये सारी चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सैनिटेशन का मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ देश में नेशनल मिशन, तो उसके बाद देश में जन आंदोलन जो विकसित हुआ, बहुत सारे हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के अंदर उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में पॉजिटिव हमारे को लाभ मिला। अभी इन सब फैक्टर्स को भी हेल्थ और उसका वेलबीइंग, इसको ख्याल में रखते हुए बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया गया है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विशेष रूप से फाइनेंस मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। मिशन जो पोषण अभियान हमारा है, उसका जो 2.0 जो हमारा नेक्स्ट फेज है, वो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नए पैमाने पर इंप्रूव करके उसको लागू किया जाएगा। जल जीवन मिशन में 4,378 लोकल बॉडीज और 2.86 करोड़ घरों में साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए, कनेक्शंस देने के लिए, और खासकर जो 500 अमृत शहर हैं, अमृत सिटीज हैं, उनमें लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए जो सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इस जल जीवन मिशन के ऊपर अगले 5 साल में 2,87,000 करोड़ रुपए का जो है बजट का प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार से
जो मैंने जैसा कहा कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, सैनिटेशन के इश्यूज को हैंडल करने के लिए उसका भी जो 2.0 नेक्स्ट एडिशन जो प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए भी 1,41,678 करोड़ ये नेक्स्ट 5 साल के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए, यानी जितने भी फैक्टर्स स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, स्वास्थ्य के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को, क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स को, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, होलिस्टिक एस्पेक्ट्स को, वेलबींग को, इनको स्ट्रेंथन करते हैं। वो खाली स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए नहीं, अपितु और भी दूसरे मंत्रालयों से जुड़े हुए सभी के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होलिस्टिक व्यू लिया गया है। और लगातार 1 साल प्रधानमंत्री जी ने कोविड के खिलाफ जंग में सब चीज़ों को बारीकी से मॉनिटर किया है। पूरे कोविड के खिलाफ जंग में जब जब हेल्थ को जितनी भी आवश्यकता पड़ी, हम जानते हैं कि इससे पहले भी 4-5 मिनी बजट भी प्रस्तुत किए गए, उन सबके माध्यम से भी बहुत बड़ा जो है पैसा जो है उसका उपलब्धता देश के लोगों के लिए की गई। लगभग जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बताया 27 लाख करोड़ रुपया लगभग जो है 1 साल के अंदर देश के गरीब लोगों के लिए उनको सब सुविधाएं हेल्थ की और दूसरी पोषण की, भोजन की उपलब्ध कराने के लिए। और उसके ऊपर ये अभी जो बजट आया है उसमें इतना बड़े पैमाने पर इतना ज़्यादा इसको एनहेंस किया गया है, मेरे पास शब्द नहीं है अपने मन के उद्गार को व्यक्त करने का। मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बता रहे थे कि हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या बड़े अनाउंसमेंट इस बजट में आज किए गए हैं और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट दिखेगा अगर हम ज़मीन पर देखें और आम आदमी के नज़रिए से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं साकेत डालमिया जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं PhD CCI से। आपका स्वागत है साकेत जी। साकेत, सबसे पहले तो इंडस्ट्री के नज़रिए से जो उम्मीद की जा रही थी, आप लोगों को जो उम्मीद थी सरकार से, कितनी वो पूरी होती नज़र आई है इस बजट में? और ओवरऑल जो अनाउंसमेंट है इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज को लेकर, उसे कैसे देखते हैं आप? मैं कहूँगा कि ओवरऑल बजट आज के बजट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, जो हम सोचते थे, वो थी कि सरकार का सोच क्या है, डायरेक्शन क्या है अपने कंट्री के लिए। वो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एट द ओपनिंग में ही बता दिया कि हम पैसा खर्चा करने जा रहे हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डिमांड को क्रिएट करने के लिए। तो ऑब्वियसली जो ये चीज़ लागू हो जाएगी, there is going to be a huge pent-up demand for everything in the country. So having said that, I think that the government has done a beautiful thing of kick-starting the economy in the true sense. Having said that, जो सबसे बड़ा challenge जो government के लिए आगे बढ़ते हुए रहेगा, even after creating the DFIs and the bad bank and so on and so forth, जो हमारे PhD chamber में members हैं, वो mostly MSMEs हैं। तो जब हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो 9 महीने जो उन्होंने कुछ कमाया नहीं, और जो डिमांड इतना सप्रेस था और जो उनके ऊपर जो इतना बड़ा कॉस्ट आया, और गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड वे में इंडिया में कर पाई बिकॉज दे वर आल्सो लिमिटेड विद द रिसोर्सेज। इस बैकड्रॉप के संग पैसा उनके लिए अवेलेबल करना और लार्ज इंडस्ट्री को उनको कंज्यूम नहीं कर जाना, उनको खा ना जाना, उनके शेयर को नहीं ले लेना, ये एक बैलेंसिंग एक्ट सबसे डिफिकल्ट है। क्योंकि हम इकोनॉमी को खोल दिए हैं और हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आज के दिन है, तो प्रोटेक्शनिज्म मांगना भी एक सही उचित चीज़ नहीं होगी। लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। बड़ी कंपनियों को पैसा सस्ता मिल रहा है, आज के दिन ईजिली मिल रहा है, कॉर्पोरेट्स कैन ईजिली गो टू द बैंक्स एंड गेट मनी, बट द स्मॉल पीपल हु हैव द कैपेबिलिटी टू गिव अ गुड सर्विस, हु आर क्रिएटिंग गुड प्रोडक्ट्स, उनको जगह चाहिए कि वो किसी तरह से सर्वाइव कर सकें। तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट के लिए यही रहेगा कि इनके लिए ये एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए। तो बिगिन विथ जो कोविड सेस इन्होंने नहीं लगाया, जो सब डर रहे थे,
और उन्होंने लार्जली टैक्सेशन को छोड़ दिया एज इट इज, वो एक बहुत बढ़िया स्टेप है मैं समझता हूँ। और जब लास्ट में ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि जैसे हम क्योंकि स्टील प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इसके वजह से हम उस पर ड्यूटी घटा दे रहे हैं, इस टाइप के एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइमली होना भी बड़ा आवश्यक है। लेकिन इस टाइप का एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट होना देना भी हमारा एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, आज स्टील और सीमेंट के अंदर कुछ बड़ी कंपनियां रह गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया में बंद हो गई, वो बड़े फाइनेंसिंग की वजह से बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स खरीद लेते हैं और उसके बाद प्राइसिंग बढ़ जाती है उनकी। तो इस टाइप के जो एनवायरनमेंट है वो दूसरे इंडस्ट्रीज में ट्रिकल ओवर ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो भी थोड़ी सी भी बड़ी कंपनी हो गई है वो स्टॉक मार्केट में उसकी 100 की पी मल्टीपल ऑलरेडी होने लग गया है। तो दीज आर साइंस कि वो ओवरहीटेड हो रहे हैं उन लोगों की, उन कंपनीज के लिए जिनके प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया हैं। ओके, लेकिन उन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर छोटे और मीडियम कंपनीज भी जो हैं वो सरवाइव करनी जरूरी है, जैसे वो कंपटीशन दे सके, ओवरऑल ग्रोथ क्रिएट कर जी सके। साकेत, आपने जो employment कर पॉइंट सके। रेज किया मैं इस पर थोड़ा सा जो इसमें- रिएक्शन चाहूंगा। यतीश का हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। यतीश, जो साकेत कर रहे हैं इंडस्ट्री के नज़रिए से कि वेलकम कर रहे हैं जिस तरीके के स्टेप लिए गए हैं, लेकिन उनको एक चिंता या चुनौती जो बता रहे हैं कि बड़ी इंडस्ट्रीज वर्सेस छोटी या एमएसएमई सेक्टर के लिए फाइनेंस की उपलब्धता और उस नज़रिए से जो स्कीम्स लॉन्च की गई, चाहे बजट से पहले सरकार की ओर से पीएलआई की बात करें या दूसरे जो और इंसेंटिव्स दिए गए हैं, क्या वो इस चुनौती को पूरा करते हुए नजर आते हैं? देखिए, जो इंडस्ट्री की डिमांड रही है शुरू से वो क्रेडिट की रही है, और क्रेडिट खासतौर से पब्लिक सेक्टर और इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक का जनरली टॉप 20 या 30 लार्ज कॉर्पोरेट्स में कंसंट्रेटेड है। क्रेडिट ग्रोथ अपने आप में पिछले 6-7 सालों से गिर रही है और इसकी गिरावट एमएसएमई के लिए और भी ज्यादा है। ड्यूरिंग पैंडेमिक एमएसएमई पे दो तरीके से मार पड़ी थी। एक तो उनपे मतलब जो उनके बकाया था या उनके जो रेवेन्यूज लार्ज कॉर्पोरेट से आने थे वो लिक्विडिटी क्रंच की वजह से रुक गए थे और उनको अपनी सैलरीज या इवन लेबर को देने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए वो बैंक्स के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए या उसकी लिमिट बढ़ाने के लिए पहुंचे, लेकिन बैंक्स ने उस समय भी एमएसएमई की इतनी तवज्जो नहीं की जितनी की करनी चाहिए। आप जानते हैं कि एमएसएमई लार्जर फॉर्मल सेक्टर में सबसे बड़ा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर एमएसएमई को एज ए हायर रिस्क देखता है। ओके, इसीलिए जो मेरे ख्याल से दो चीजें होनी जरूरी हैं। एक तो जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात है उसमें स्पेसिफिकली अगर एमएसएमई के लिए लोन दिए जाएं तो शायद इस सेक्टर को फायदा होगा, क्योंकि हमने देखा है लेकिन कि सरकार की ओर से जो दोनों कोलेटरल public फ्री sector लोन की बैंक बात कही गई है एमएसएमई सेक्टर में, उससे आपको नहीं लगता कि ये जो एक बड़ा हर्डल था ये दूर हो जाएगा? ये ना प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू है कविंद, ये इसको कहना और इसको करना, क्योंकि जो चाहे ये फंड बनाया जाए या फिर ये इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अपनी तरफ से क्रेडिट फ्लो को बढ़ा नहीं पा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक तो किसी भी हद से किसी भी रेगुलेटर की बात नहीं सुनते कि किस सेक्टर में दिया जाए। देखिए, पिछले 30 या 40 साल में आपने देखा कि सरकार ने कभी भी पेनलाइज नहीं किया किसी भी बैंक को अगर उसने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं की। ओके, तो जब वो सरकार ये कहती है कि आप एमएसएमई को दीजिए कर, तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है बैंकिंग सेक्टर पे। ओके, ओके, यतीश में इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन की जरूरत है। ओके, मैं लौटता हूँ आपके पास इस पॉइंट पर, लेकिन एक और चीज़ जो साकेत मैं पूछना चाहूँगा इंडस्ट्री के नज़रिए से, क्योंकि इंडस्ट्री जैसे अपने शुरुआत में ही कहा कि इस बजट में साफ तौर पर सरकार ने दिखा दिया है उद्योग जगत को कि वो लीड करना चाहती है और जो सरकारी खर्च है उसके ज़रिए निवेश भी कर रही है। अब इंतज़ार प्राइवेट सेक्टर का है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो जो एटमॉस्फेयर था और जो रिस्क फैक्टर था उसको कवर करने के लिए सरकार का बैकअप, तो इंडस्ट्री तैयार है उसको अब आगे बढ़ने के लिए? बहुत बढ़िया बात आपने अभी जो साहब कह रहे थे, मैं उस पर सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो रूट कॉज है, जो बैंक, देखिए एंड ऑफ द डे इंडिया में पैसा बैंक ही देती है। कमर्शियल बैंक्स आर द मेन सप्लायर्स ऑफ मनी टू एमएसएमईज एज वेल। और जैसे साहब ने कहा कि
एंड ऑफ द डे उनके ऊपर आज के दिन एक डर का प्रभाव है, एक माहौल जो है ना कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, वो डर का है। जो वहाँ के मैनेजर्स है वो पैसा देने में घबराते हैं क्योंकि उनको ओवर स्क्रूटनी का डर है। सो आई थिंक, और प्लस वहाँ पर सिस्टम्स बहुत सेट हैं कि इतना आप कवर ले सकते हैं, इतनी सिक्योरिटी चाहिए, इतना कोलैटरल चाहिए। तो स्ट्रक्चरल अगर रिफॉर्म सरकार कर पाएगी कि ठीक है भाई, कोलैटरल अगर आपको 100% चाहिए था, हम उसको प्रिंसिपली 75% कवरेज में अलाउ करते हैं। अगर आपको एक्स अमाउंट ऑफ बजट फाइनेंस, अगर एक प्रोजेक्ट में 70% पार्टिसिपेट करना था तो आप 85% कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर सरकार लाती है और बैंक मैनेजर्स को पुश मिलता है कि भाई हम आपको अकाउंटेबल फॉर नहीं करेंगे अगर लोन बैड हो जाएगा, ये टाइप का माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है, न तो छोटे इंडस्ट्री को हेल्प नहीं मिलने वाला है। जी, मैं अब दूसरे सवाल पर आ रहा हूं, जो मैंने पूछा आपसे कि इंडस्ट्री को जो एक कुशन चाहिए था, सरकार ने अपने बजट में वो दिया है। अब इंडस्ट्री उसको किस तरीके से रिएक्ट करेगी और किस तरीके से आगे आएगी, निवेश के नजरिए से और पीपीपी मॉडल के जरिए? आई थिंक इंडस्ट्री का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव है। आज जो सुनने में आया, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एन एक्सीलेंट बजट, नियर अ ड्रीम बजट गिवन द सर्कमस्टांसेस एंड द बैकड्रॉप ऑफ कोविड, looking at all the important expenditure which the government has undertaken for health, for infrastructure, for roadway, for ports, giving the sign that we want to make your lives easier by not increasing taxation, by making, in fact, opening of books prior to 3 years near impossible, by creating the corporate environment better, by creating more simpler structure for one-man companies. All these are indications that the company wants to now delve deeper and go down the road to at the base level to make things simpler for industry, for big or small. So those are big points, I think, and it's going to give a good sense of new direction and a further fill-up to industry going forward. जैन सर, इंडस्ट्री को और क्या चाहिए जिस तरीके की सहूलियत और जो एक कुशन की बात डिमांड में कहूँ खासतौर पर इंडस्ट्री करती रही है, और कोविड के बाद अगर हम देखें सरकार ने उसको अलग अलग तरीके से सामने रखा और बजट में भी काफ़ी कुछ सहूलियत उस नज़रिए से नज़र आती है, तो ऐसे में जो एटमॉस्फेयर है अब वो बेटर नज़र आ रहा है और इंडस्ट्री के लिए इस वक्त एक बेटर मौका है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे? जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें बहुत सारी जो कंपनियां थी, उन्होंने सरकार के पीएसयूज़ को, सरकार को आपूर्ति की थी विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का। तो उसमें जो बकाया राशि थी सरकार के विभागों ने और पीएसयूज़ ने, उसमें से अधिकतर का भुगतान कर दिया है। तो इससे एक लिक्विडिटी उनको मिली है। जो डालमिया साहब अभी कह रहे थे, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। जब तक आप बैंकिंग सेक्टर में ये आप नहीं स्वीकार करेंगे कि ये एक रिस्क प्रोन बिजनेस है, आपने अगर 100 लोन दिए तो उसमें से कुछ लोन आपके बैड लोन्स हो जाएंगे, चाहे। जी सर, इस वक्त सीधे चलते हैं, प्रधानमंत्री इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं।